Now let's see the condition of health in our economy. So let's start with the definition first. So health is a crucial component of social infrastructure. It refers to a state of component complete physical, mental and social well-being and soundness. So हेल्थ क्या है बच्चे, आपकी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये बेसिकली बताता है एक पर्सन का क्या फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कंडीशन है, राइट? कि क्या वो मेंटली एंड फिजिकली साउंड है या नहीं है। It is not only the absence of disease but also the availability to realize one's potential. That means हम एक हेल्दी पर्सन उसे बोलेंगे जो डिजीज फ्री तो है, बट उसके साथ साथ उसको पता होना चाहिए दैट हाउ मच पोटेंशियल ही और शी इज हैविंग, राइट? कोई बीमार नहीं है बट स्टिल उसको पता ही नहीं है क्या करना है, क्या पोटेंशियल है एंड हाउ टू डू थिंग्स, तो उसको हम एक हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे। It is the holistic process related to the overall development and growth of a nation. That means एक जो health है, it is very essential and it helps in the overall growth and development of a nation. एक economy के all over growth में, all over development में के लिए health is very crucial. So health infrastructure includes your hospitals, doctors, nurses and other paramedical professionals, bed equipments required in a hospital and a well-developed pharmaceutical industry. Then the development of health infrastructure ensures healthy manpower for the development of goods and services. So health infrastructure में क्या क्या include होगा? All the hospitals, doctors, nurses, your paramedical staff, your pharmaceutical industry, these all are included in your health infrastructure. And health infrastructure is very important for our economy and we should make sure that we have a good health infrastructure so that we can have a healthy manpower in our economy for the development or for the production of goods and services. The government is responsible to ensure the right of healthy living. In other words, it's the responsibility of the government to ensure that health facilities are accessible to all the people. Three-tier healthcare system in India. That means यहाँ पे बोला जा रहा है that आपकी जो गवर्नमेंट है that is रिस्पॉन्सिबल, उसको पूरे रिस्पॉन्सिबल है टू मेक श्योर कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही है। एंड इन आवर इकोनॉमी वी हैव बेसिकली थ्री टियर हेल्थ केयर सिस्टम. So let's see that what is this three-tier healthcare system. So healthcare system of India, it basically consists of three tier, that is the primary healthcare, the secondary healthcare and the tertiary healthcare. Now let's see each of them individually. The primary healthcare, बच्चे this one is the basic one, जो बिल्कुल basic healthcare facility मिलती है किसी भी area में, that is included in primary healthcare. अगर आप किसी भी गांव में चले जाओ या किसी भी और किसी जो सिटीज के अंदर छोटे छोटे टाउन्स होते हैं वहां जाके देखो, वहां जो छोटे छोटे आपके क्लिनिक्स होते हैं, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन बेसिकली योर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. अब प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूडेड क्या होता है आपका? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, योर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड योर सब सेंटर्स. ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं किसके अंदर? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में. इन हेल्थ केयर सेंटर्स को बेसिकली एक सिंगल डॉक्टर ओन करता है, दैट मीन्स पूरा मैनेज करता है, एंड उसके साथ साथ कुछ नर्सेज होते हैं जो एज अ सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ वर्क करती हैं. अगर हम किसी गांव में चले जाएं तो वहां पे तो और नर्सेज भी क्या होंगे, यूजुअली कम होती हैं, राइट? यहाँ पे मोस्टली कहाँ मिलते हैं आपको? रूरल एरियाज में मिलते हैं. ये बेसिकली हेल्प करते हैं लोगों को हेल्थ केयर के बारे में एजुकेट करते हैं कि दैट वाई हेल्थ इज इम्पोर्टेंट और कैसे कैसे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं. देन इट हेल्प्स द पीपल फ्रॉम प्रिवेंटिंग सम डिजीजेस. आपको कोई वैक्सीनेशन लगवाना है, कोई बहुत छोटा मोटा और कोई इंजरी हो गई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यू कैन गो फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर.
देन आपको जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, दे प्रोवाइड्स द बेसिक, वेरी बेसिक ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट, बिकॉज इनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, कोई ऐसा स्टाफ नहीं होता है. इट इज द वेरी प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो क्या होती है, मिलती हैं. फाइन. सो दिस इज योर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स. इसमें वो सारे हॉस्पिटल्स आ जाएंगे जो क्या दे रहे हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज दे रहे हैं एंड प्रॉपर हेल्थ केयर की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे वहाँ पे सर्जन्स होते हैं, देन दे हैव एक्सरे मशीन, दे हैव ईसीजी मशीन्स, राइट. ये सारे कहाँ लोकेटेड होते हैं बेसिकली, या तो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या फिर बड़े बड़े शहरों में. अब जिस इंसान का ट्रीटमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में नहीं हो पाता है, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर. अब टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर में क्या आ जाएंगे, आपके हॉस्पिटल्स, आपके मेडिकल सेंटर्स, जहाँ पे सारे एडवांस मशीन्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, राइट, जो हर टाइप की इमरजेंसी एंड कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. वो सारे केसेस जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में मैनेज नहीं हो पाते हैं, उनको हम कहाँ लेके आते हैं, इन दी टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स. ये बहुत प्रीमियर टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन मिलती है, राइट, एंड साथ के साथ यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती हैं, राइट. यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एम्स, वी हैव एम्स इन दिल्ली, देन वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ एंड NIMHNS, that's in Bangalore. So these are included in basically your tertiary healthcare centers. So I hope this much is clear to you all. If you feel that you have any doubt or any query in any of the following topic, you can just share a query in the comment section. We will try to resolve all your problems and all your queries. Thank you. If you like our content, then please like this video and subscribe to our channel. And please share this video on WhatsApp, Facebook, LinkedIn, and Twitter. And if you have any doubt or any query, you can just comment down below. And thank you for watching this.